Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. We are going to start NCERT textbook of science, class 6th, Curiosity, chapter 2nd, part 1. The name of the chapter is Diversity in the Living World. If you like the video, then subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. Here is Mosmi present before you to explain you line by line of this chapter so that children you can answer all types of questions. Okay, the name of this chapter is Diversity in the Living World. First, let's come to the point. What does it mean by diversity? The word diversity comes from the word diverse. It means varieties of, different kind of. This diversity you find in Indian religion also. How someone is Hindu, someone Muslim, someone is Sikh, and also someone is Isai. So they belong to different category. Likewise, this diversity also you find in Indian food. Someone like idli dosa, someone like kachori samosa. So each one like different kinds of food. Also in your class, I find diversity. How? Because one of the student is expert in drawing, another student is expert in singing. So this is also one example of one diverse class. Okay. In this living world, you can find different animals and plants of different kind. So in this chapter, we will discuss about different types of animals and plants. We will observe them, analyze them, explore, compare and group them in different types of plants and animals around us. Okay, let's come to the chapter. In this chapter, our science ma'am has invited two guests. Who are those guests? Those guests are one scientist called Dr. Raghu and another is our Maniram Chacha. Then this Dr. Raghu is a scientist who are in the nearby research laboratory, and Maniram Chacha is one experienced person who is from a nearby community. He was an elderly person, and what is his specialty? He is expert in mimicking the bird calls. तो डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट है जो कि नियरबाय रिसर्च लेबोरेटरी में है, और मणिराम चाचा का स्पेशलिटी क्या है? वो अलग अलग बाड़ की बोली जो है उसको वो बहुत अच्छी तरह मिमिक कर पाते हैं. आपको पता नहीं चलेगा कि वो हमारे चाचा कर रहे हैं, मणिराम चाचा कर रहे हैं, या फिर ओरिजिनली उस बर्ड की बोली है. तो ये सब डॉक्टर रघु, मणिराम चाचा, हमारे साइंस टीचर और क्लास के आपके जैसे सारे बच्चों, दे वेंट ऑन वन नेचर वॉक. नेचर वॉक मीन्स व्हाट? नेचर वॉक मीन्स they will start their expedition in a natural place deep into the jungle. You all got started, your like children started moving in for a nature walk where Dr. Raghu asked them. Dr. Raghu वो बोलते हैं बच्चों को, अरे बच्चों देखो कि the beauty and variety of plants एंड एनिमल्स इन द नेचर. तुम्हारे चारों ओर जो ये एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कितना सुंदर है, उनको देखो, उनका फ्रेग्रेंस लो. यू स्मेल दैम, you toss them, interact with them. Some are very soft, some are hard. So whatever you are seeing around you and whatever you are experiencing, you note it down in your notebook. और इसी को आप समझ लिए जैसे कि आप किसी पिकनिक पे गए हैं. आप कहाँ जाते हैं? You go for a nature walk deep into the forest. But along with this, you will have to take one notebook, one pen and one water bottle. क्यों बच्चे? आप जब बहुत चलते हो तो आप थक जाते हो ना, फिर आपको चाहिए होता है पानी. तो फिर डॉक्टर रघु का कहना है कि रेस्पेक्ट ऑल लिविंग क्रीचर्स. हमारे चारों ओर जो भी, चाहे वो जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, आप उनको बहुत प्यार से डील करो और ऑब्जर्व देम, उनको देखो पर डिस्टर्ब मत करो. ऑब्जर्व देम विदाउट डिस्टर्बिंग. और मणिराम चाचा बोलते हैं कि लिसन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ द बर्ड्स. अरे सबका बोली अलग अलग है, तुम उनको थोड़ा ध्यान से सुनो. यू लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स.
while walking they found some grasses, they found some bushes, and also they found some large trees, because in his jungle not one type of plants you will find, all different kinds of. some are छोटा छोटा जो है वो ग्रासेस है, थोड़ा बड़ा बड़ा भी है वो क्या है बुशेस है, और फिर बहुत बड़े बड़े ट्रीज, घना जंगल है. तो फिर ऑल द प्लांट्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. एंड व्हाइल वॉकिंग वो देखे कि बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. तो कुछ ट्रीज पे हमारे बर्ड्स बैठे हैं, और फिर मंकी जंप कर रहे हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. इन दिस वे they enjoyed their expedition. So monkey jumping from place to place. Each bird has a unique chip. सभी का बोली अलग अलग है, और this is only the example of diversity in nature. यानी कि दो प्लांट का बोली एक प्रकार की नहीं होगा, सभी का बोली अलग अलग है. और our मणिराम चाचा is expert in mimicking them. ओके तो फिर जो भी बच्चों ने वो सब देखा वो सब रिकॉर्ड किया. इसी हिसाब से हम देखें तो हमने बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे देखे. वी ऑब्जर्व मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. इफ वी विल राइट इट डाउन ऑल ऑफ देम, देन लेट्स कंसिडर वन ग्रास. ये देख रहे हैं ना, दिस इज वन ग्रास, दिस इज वन तुलसी प्लांट, एंड दिस इज वन हिबिस्कस प्लांट. I think you all have seen this in your day-to-day life around you. If we observe one grass, what we will see? We will see that the stem is very soft and also thin. If we see its leaves, how they are arranged, the leaf grows alternately. Alternately मतलब ऐसे. It means एक इधर एक इधर एक इधर लीफ ऐसे अल्टरनेटली होता है. और वो लीफ का कलर कैसा होता है? इट इज़ ग्रीन इन कलर. ऐसे हम तुलसी के प्लांट देखिए. तुलसी के प्लांट भले ही ग्रास से थोड़ा बड़ा है, पर तुलसी का प्लांट उसका जो स्टेम है थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा थीन है. उसका जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है वो अल्टरनेट है. मतलब कैसा अल्टरनेट? मतलब ऐसे अल्टरनेट नहीं है, वो प्यार में है. मतलब ऐसे जोड़ी जोड़ी होकर एक ही जगह से निकलेगा. तो फिर इसे पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं. और इसका जो तुलसी का फ्लावर्स जो है वो तो पिंकिश पर्पल कलर का ही है. और हिबिस्कस का अगर हम देखें, हिबिस्कस जो गुड़हल का प्लांट बोलते हैं, उसको स्टेम हमने देखा तो फिर वो तो ग्रास जैसे सॉफ्ट नहीं है, तुलसी जैसे इतना भी हार्ड नहीं, उससे भी और ज़्यादा हार्ड और थोड़ा ज़्यादा हार्ड है. और अगर हम नीम के पेड़ की देखें तो नीम का पेड़ का जो स्टेम है वो तो बहुत ही हार्ड है. वो बहुत ही, आप उसको अगर तोड़ने के लिए सोचो बच्चों तो यू कांट ब्रेक इट. द स्टेम ऑफ नीम इज हार्ड, एंड इफ यू विल ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ नीम, इट इज स्मूथ एंड शाइनिंग. So this is how we observe that the plants, their stem, their leaves are different from each other. Then within plants we found some things are similar and some of the things are different from each other. जैसे हमने देखा इतने सारे प्लांट्स देखने के बाद कि some plants are tall while some are short. हमने देखा स्टेम कि some stems are hard while some stems are soft. ऐसे अगर हम leaves को देखें, if we observe leaves, we found that the shape of the leaf is different for different plants, and also the arrangement of leaves. What is the arrangement of leaves? Some are coming out alternately, some are coming out in pairs. So ये भी अलग अलग है. और अगर हम उनके फ्लावर देखें, जैसे गुड़हल के प्लांट, the hibiscus plant is red in color, while you will see jasmine is white in color, rajnigandha is white in, night queen is white in color. In this way their flowers also differ in their shape, size, color and so on. तो ऐसे जैसे हमने अभी प्लांट का एक लिस्ट बनाया, next we will see and observe how animals are different from each other. Okay? Now come to table 2.2. You went through a nature walk and you saw so many types of plants. Also you saw so many types of animals. आपने बहुत टाइप ऑफ एनिमल्स भी देखे. अब let's summarize and compare them, group them, all types of animals.
Okay, let's come to table 2.2. Suppose a new student came to your class. What do you ask that student? You want to know about that student, and you ask, what's your name? Where do you live? What food do you like? This, that. In this way, you ask so many questions to know about this. Suppose I ask you, where do you stay? Then some of you will say, I live in a bungalow. Someone would say, I live in flat. Someone would kacha house, pakka house. In this way, different types of house you will mention. So if we ask a crow, brother, what's your name? It will answer, my name is Crow. Where do you live? Then it will say, I live on a tree. मैं एक ट्री पे रहता हूँ. And we'll ask a aunt, where do you live? Then the aunt will say, I live in ant hill or nest in the soil. If we say, brother cow, where do you live? Then the cow will say, my place is near to your house in cow shed. Then in this way, the different types of animal would say different types of houses or the places where they live, which is really different from each other. Crow lives on tree, then ant in ant hill, and cow somewhere else. So their houses differ from each other. ऐसे अगर हम उनके खाने की बात देखें तो if you will ask one crow will say, brother, what you will have in your dinner or lunch? आप खाने में क्या खाओगे? तो फिर क्रो बोलेगा कि मैं तो इंसेक्ट खाऊंगा. ऐसे आंट को पूछा जाए, चींटी को पूछा जाए क्या खाओगे? Then the ant will answer, I will eat seeds, insects, leaves. That is sufficient for me. Then if we will ask cow, brother, will you eat insects? Then the cow will answer, no, I eat grass. I am vegetarian. मैं तो घास फूस खाता हूँ. मेरा तो इसी से काम चलता है. मुझे कोई नॉनवेज नहीं चलता. ऐसे इफ वी आस्क ए क्रो कि आप कैसे जाते हो? क्या हमारे साथ रास्ते में आओगे कार में बैठ के? तो क्रो बोलेगा, नो आई कैन फ्लाई. आई हैव माई फ्लाइट टिकट. आई वोंट कम इन योर कार. देन इन दिस वे आंट को हम बोलेंगे, ब्रदर आंट आपका तो 6 legs है, आप तो बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रांग हो. देन द इट्स नॉट लाइक दैट. आंट हैज 6 legs, मैन हैज 2 legs, crow has also 2 legs, and their moving style is also different. So though all are animal, their living style, eating style, everything differ from each other. In this way, if we will summarize, then we will find that there are some similarities among the animals and also some differences among the animals. Basically, we can categorize them. Some of the animals, they live on land. कुछ तो लैंड में रहते हैं और उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल. ऐसे देखा जाए कुछ एनिमल्स दे लिव इन वाटर, जैसे कि हमारा फिश हुआ. डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, क्रेब्स, लॉबस्टर, दे आर फाउंड इन वाटर. पानी में रहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल. पर कुछ एनिमल्स आर देयर हु लिव्स आल्सो इन वाटर, आल्सो ऑन लैंड, आल्सो इन वाटर. दे मूव फ्रॉम लैंड टू वाटर. अरे ये तो बहुत अजीब बात है. उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस. एंड इन दिस कैटेगरी कम्स फ्रॉग. हमारा फ्रॉग जो है पानी और वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है. ऐसे अगर हम देखें तो दे ईट ऑल्सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड. If we compare different animals, they eat different types of foods. Some are vegetarian, some are non-vegetarian, and also they exhibit different types of movements. हमने देखा कोई स्काई में जा रहा है, कोई लैंड में जा रहा है. ओके, तो फिर इसी हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? The variety of plants and animals found in a particular region contribute to the biodiversity of that region. अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. उसी से उसी जगह का बायोडाइवर्सिटी बनता है. जैसे इफ यू टेक वन डेजर्ट, इन डेजर्ट यू विल फाइंड camel, animal camel, and plant cactus. If you go to mountainous region, Himalayan region, what you will find? You will find deodar tree.
Then the types of plants you will find in a desert and the types of plant you will find in the mountainous region are not same. It will differ from as per the locality. इससे कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी, तो जिस एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो दूसरे एरिया में किसी अलग टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं और वो उसी जगह का बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी से उन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स से बनता है उसी जगह की बायोडाइवर्सिटी. ऐसे बायोडाइवर्सिटी में जो भी एनिमल एंड प्लांट्स आर अवेलेबल, they play a different role. All the animals and plants have different role. Like in your house, your parents, your mother has different role, your father has different role. What your father does, your father will pay for your school fees and take you to hospitals and on long tours. But what your mother does, your mother will take care of your health, your food, your homework, your project work, your cleanliness, uniform, everything. She will only manage. Then do you think both are similar? No. Father's work is different from mother's work and your work is also different. Likewise, हमारी biodiversity में the plants and animals found, they all have different types of roles. जैसे कि हमारी trees का काम है, the trees provide shelter and to the some of the plants and also animals. ट्रीज में हमारे कुछ प्लांट्स अपना नेस्ट बनाते हैं और बिलो द ट्री द एनिमल्स टेक रेस्ट. ट्री तो अपना ग्राउंड फ्लोर छोड़ देता है, अरे एनिमल्स भैया आप आ जाओ रेस्ट करो. और एनिमल्स क्या करता है, एनिमल्स टेक द फ्रूट्स एंड स्कैटर देम इन डिफरेंट प्लेसेस. ऐसा तो नहीं अगर आपको आम खाना है तो यू सिट अंडर द मैंगो ट्री एंड पुट द सीड देयर. नो, you take a mango in your house on your dining table, then you throw it in that area. So accordingly the seeds of the plants are scattered to different places so that good trees can grow properly. So इसी तरह plants and animals help each other in maintaining the diversity. Suppose now come to the point how to group plants and animals. अपने तो बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स देखे. नाउ आई विल आस्क यू, यू ग्रुप ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स, देन यू विल गेट कंफ्यूज. अपने तो इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखे, अब उसको ग्रुप बनाइए तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. कोई मुश्किल नहीं. चलो, योर मदर विल आस्क यू अरेंज योर बुक सेल्फ. व्हाट यू विल डू, you will arrange all the books in a place, all the copies in a place, all the compass and the instruments in other place. Likewise, we can group all the plants and animals on the basis of their similarity and dissimilarity. सारे कॉपी को आपने एक जगह रखा, सारे अपने बुक को अलग जगह रखा, तो बेसिंग ऑन देयर कॉमन फीचर्स, उनमें क्या कॉमन फीचर्स है उसी हिसाब से आप उसका ग्रुपिंग करते हैं, है ना. तो फिर ऐसे प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, इसी के ऊपर आप उसको कर सकते हैं डिवाइड. हार्ड स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम है, उसी के ऊपर कर सकते हैं. उनका वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ईटिंग हैबिट्स के ऊपर कर सकते हैं. और कहाँ कहाँ वो रहते हैं उसी उनका रहने के स्टाइल के हिसाब से भी आप उसका कैटेगोराइज कर सकते हैं. तो हम ये ग्रुपिंग आखिर करते क्यों है, ये ग्रुपिंग हमको क्या करता है, ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स और एनिमल्स का के बारे में ज़्यादा हमको अच्छी तरह समझाता है अगर हम ग्रुपिंग करें तो, और उनका सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में भी हमको बताता है. तो ग्रुपिंग से हमको स्टडी करने में बहुत मदद मिलता है. ओके, Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. hello, we are continuing NCERT textbook Curiosity, class 6th, chapter diversity in the living world, chapter 2nd. Then last time we discussed about how we can group animals and plants. We can group plants on the basis of their presence and absence of flowers also. We have seen here, if there are flowers, we can say it flowering plants, and if there is no flowers, we can say it non-flowering plants. On the basis of their stems also, we can say it hard stem or soft stem. Accordingly, we can divide into herbs of trees. And for animals, we can see
According to their eating habits, they are vegetarian, non-vegetarian. According to their place they live, they are aquatic animal, they are terrestrial animal, or the amphibians. Likewise, on the nature walk, you found so many types of plants. Suppose you are asked to group whatever plants you have watched, then how you are going to group them? We saw that different plants have different types of stems, different types of leaves. Their flowers also different in their size, color, likewise. So we are going to divide all the plants on the basis of their height and the types of stem they have. So according to their height and the types of stem, basically we can find that plants can be divided into herbs, shrubs and trees. Okay, let's see whom we will categorize as trees. Okay, we found that mango tree also we found it. It is tall, brown, and its stems are brown, hard and thick. So we will call it as tree. Then what's the nature of one tree? What is called a tree? When the plant is tall and the stems are hard, thick, brown and woody, and also it starts away from the ground. The branches will not start from the ground. जब एक बड़ा सा ट्री बहुत टॉल होता है और उसका ब्रांचेस सीधे जमीन से शुरू नहीं होके 2 मीटर 3 मीटर ऊंचाई से शुरू होता है, away from the ground, then it is the nature of one tree. And its example is mango tree, coconut tree, many more trees are there. So all the big trees, they will come under this category. Then we saw one rose plant. Suppose one rose plant. What is the size of one rose plant? Its height is medium. And what about its stem? Its stem are brown. Can you break them? It is little bit thin, but it is hard. You can break them, yes. And this comes under shrub category. What is the nature of one shrub? Shrubs are, look, they have brown woody stems and their branching starts very close to the ground. पूरा सीधे जमीन से ही शुरू हो जाता है बहुत सारी, जैसे बुशेस होते हैं ना, तो फिर जमीन से ही शुरू हो जाता है बहुत सारी ब्रांचेस. ये आप उसको, ये बहुत ही सॉफ्ट नहीं होते, लिटिल बिट हार्ड, बट you can also break them because the stems are thin. And its example, these are called shrubs. इसी कैटेगरी में आ जाएगा हमारी हिबिस्कस भी. ऐसे हम हर्ब्स किसे कहेंगे? You have seen grass और टमाटो प्लांट. you have seen टमाटो प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट है and also green in color. It's not woody and it is like घास फूस. You can say the grass, tomato plant, all these are very soft and its height is also little. बहुत कम ही उसका हाइट होता है. ये आ जाएंगे हमारे हर्ब्स कैटेगरी में. जो आप खाते हो ना, पालक की सब्जी, पालक खाते हो, और फिर हमारी मेथी, ये सब तो हो गया हमारा पालक, मेथी, ये सब ग्रीन्स जो खाते हो, ये सब आ जाएगा हमारे हर्ब्स कैटेगरी में. सिर्फ इतना ही नहीं, और भी 2 टाइप ऑफ प्लांट्स है. क्या है? क्लाइंबर और क्रीपर. क्लाइंबर का जो है, इसका भी स्टेम वीक होता है और ये ऊपर चढ़ना चाहता है, बट इसके लिए चाहिए उसको सपोर्ट. अगर हम एक ड्राई ट्विग्स ऐसे लगा देंगे, इसके सपोर्ट के लिए प्रोवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है. कैसे चढ़ता है? उसका टेंड्रिल्स होता है. टेंड्रिल्स मतलब एक राउंड धागा टाइप ऑफ, बाय व्हिच यू कैन होल्ड द सपोर्ट एंड क्लाइंब अप. और एक कैटेगरी होता है क्रीपर्स. ये क्रीपर्स ऑल्सो क्लाइंबर जैसे वीक स्टेम और होता है और ग्रीन इन कलर होता है, पर क्रीपर बोलता है कि आई कैन मैनेज ऑन ग्राउंड, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, हम लेट जाएंगे ज़मीन पर. और ये होता है क्रीपर. तो फिर इसी कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब. और क्लाइंबर्स कैटेगरी में हमारा करेला, फ्रेंच बीन्स, ये सब आ जाएगा. तो फिर आइए देखते हैं कि वेनेशन क्या है. हमारे लीव्स जब आप देखेंगे, एक हिबिस्कस का प्लांट लेंगे और आप देखेंगे कि उसके लीव्स कैसे दिख रहे हैं. इफ यू विल स्टडी द लीफ ऑफ वन प्लांट, देन यू कैन सी 5 lines on it. These thin lines on the surface of the leaf is called veins. उसकी लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, those are called veins. और ये veins
अलग अलग दो पैटर्न में रहता है, जिसे कहते हैं वेनेसन। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, जिस पैटर्न में वेन्स रहता है उसे कहते हैं वेनेसन। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ। तो फिर ये वेनेसन होता है हमारा टू टाइप्स, एक है रेटिकुलेट वेनेसन और एक है पैरेलल वेनेसन। तो लीफ का वेनेसन टू टाइप्स होता है, रेटिकुलेट वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। You will take one hibiscus leaf. Then you will see the surface and the veins. Then what you will see? You will find one thick middle line, and on the both side of middle line you will find net-like pattern of veins on both sides of the middle line. तो इसी टाइप ऑफ पैटर्न का वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि हिबिस्कस में पाए जाते हैं, हमारे मस्टर्ड प्लांट में पाए जाते हैं। Then you see what is parallel venetion. If you will take one banana leaf और one grass, अपने एक ग्रास का लीफ लिया या फिर एक बनाना लीफ लिया, तो फिर इसका हम देखेंगे कि जो वेन्स है वो सब पैरेलली रन करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा बनाना लीफ। तो फिर ये जो वेन्स है इससे पैरेलल मैनर में जाते हैं, तो फिर इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये आपको मिलेंगे बनाना और हमारी ग्रास में। आइए देखते हैं अब रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये तो हम वेनेशन के बारे में हो गया। अगर हम रूट देखें तो फिर बेसिंग ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, द रूट्स कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इज टैप रूट एंड द अनदर इज फाइब्रस रूट। तो फिर टैप रूट आपको कहाँ मिलेगा? इफ यू सी ए मस्टर्ड प्लांट एक उखड़ के लाए, देन यू विल सी दैट देयर इज वन मेन रूट और इसके साइड में स्मॉल रूट्स अरेजिंग फ्रॉम द मेन रूट्स। तो फिर ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट्स। ये आपको और कहाँ मिलेगा? हिबिस्कस प्लांट में भी मिलेगा। तो फिर फाइब्रस रूट, द अदर टाइप रूट इज फाइब्रस रूट। वेयर यू विल फाइंड इट? यू विल फाइंड इट इन ग्रास। उसमें क्या होगा? द रूट्स जो होते हैं, द रूट्स ऑफ देयर प्लांट appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base of the plant. जो प्लांट का बेस होगा, जहां पर स्टेम एंड होगा, तो फिर एक ही रूट कंटिन्यू लंबा सा बड़ा सा कंटिन्यू नहीं करेगा जैसे टैप रूट में होता है। इसमें क्या होगा? छोटी छोटी बहुत सारे सिमिलर साइज थीन रूट्स अराइज करते हैं और एक ही जगह उसी बेस से ही वो सब अराइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। बॉन्च में होते हैं, थीन होते हैं, जैसे कि माँ बाप नहीं है और सारे छोटी भाई बहन सारे हैं। और टैप रूट में क्या होगा? जैसे एक पापा बीच में है, मम्मी पापा जैसे बीच में बड़ा सा रूट है और साइड में छोटे होता है। तो ऐसे ही होता है हमारे फाइब्रस रूट्स। तो फिर रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट एट सेम प्लांट होता है। हाउ डू यू डिफाइन दिस आउट? इसी तरह हम आगे देखते हैं इसका क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2.7. Now let's see, is there any relation between the leaf venation and the type of root in the same plant? For this we will take one Sadabahar plant. In Sadabahar plant we can find tap root along with reticulate venation. Tap root means there will be one main root and from its small side roots will arising from it. The main root is called tap root. Then what is reticulate venation? You can find the veins arranged on the surface of the leaves in a net pattern. That is called reticulate venation. But if we will see one lemongrass plant, then we can find fibrous root and parallel venation. What is fibrous root? Fibrous roots means we can find that a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the plant. It means in tap root system it will be like there will be one main root and small roots coming out of it, and in fibrous root there will be one base of the stem, and here from here there will be thin small roots of same size comes out of it. This is the fibrous root. So in this way we will say that the plants with reticulate venation have tap root, and while the plants with parallel venation has fibrous roots. So we can conclude RT and PF. It means
reticulate venation, taproot, parallel venation, fibrous roots. If we'll see chickpea plant, chana plant, then what we'll see? There also we can find taproot and reticulate venation. And if we'll see wheat plant, then we can find fibrous roots and parallel venation. Also in exams it may comes. There will be mentioned sadabahar plant, lemongrass plant, wheat plant and chickpea plant, and you will be asked to mention the type of venation and the type of roots in this plant. So you should get ready for that. Now let's see whether there is any relation between the seed of a plant and the types of root and leaf venation. Okay, for this we have to understand what is cotyledon. What is cotyledon? Basically we have two types of cotyledons, one dicotyledonous plants and one monocotyledonous plants. Before that, let's know what is cotyledon. To know what is cotyledon, we'll do one activity. Activity 2.8. We'll take one chickpea and maize seeds and we will soak them in water for 2-3 days. After 2-3 days, we will remove the seed coat and inside it we can find, for chick plant we will find this type of cotyledon and for maize we will find this type of cotyledon. What is called cotyledon? When we will remove the seed coat of chickpea seeds, we can find that it splits into two parts and each part is called a cotyledon. But the plant which has only single cotyledon are called monocotyledonous plants. But in the chickpea seed we can find it splits into two parts and each part is a cotyledon. Because it has two cotyledons, so chickpea is called dicotyledonous and maize is called monocotyledonous, where you can find a single cotyledon. Because mono means 1, di means 2, tri means 3, tetra means 4, in this way. So in this way we can conclude that we saw dicot plants have reticulate venation and also has taproot system, while monocot plant like maize we can find parallel venation and fibrous roots. We can remember it as a combination: dicot, reticulate venation, taproot, and monocot, parallel venation and fibrous root, DRT and MPF. Okay, then now see 2.9 activity if we will do. We went through the nature walk. We found so many types of animals. We saw that all the animals are moving in very different way. Some are flying, some are swimming, some are crawling. So for this moment they use their different body parts. Their different parts they are using for their movement of this body. Let's see, in this picture we can find there is one butterfly who flies. Not all the animals they move like you move. Okay, we found one butterfly, it is flying by the help of wings. We found one cow. What he is doing? It's walking. How? By the help of 4 legs. Likewise, a ant has 6 legs. It's also moving in its way. Then we went to water body. There we found a fish is also swimming. How? By the help of these fins. This brown fins you can see. These are the fins. In this way, different animals move in their way in different style by using different body parts. So let's summarize it in this table 2.5. In 2.5, if we consider one ant, a ant moves. How? By the help of legs. If we see a goat, it walks. How it walks? And also it jumps. By the help of, it has also 4 legs. A pigeon is a bird, it flies. Then how it flies? It flies by wings. Likewise, when housefly walks and flies by legs and wings. And also a fish swims by the help of fins. In this way, we found that animals use different body parts for moving from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए
एनिमल्स, अच्छा तुम अपने बारे में सोचो, तुम अपना नाना नानी के घर जाते हो, कैसे जाते हो? तुम पेड़ में चढ़ जाते हो, पानी में कूद जाते हो, कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास लेग है, यू कैन स्विम। ऐसे अगर हम देखें बटरफ्लाई को, तो फिर वो विंग्स के जरिए फ्लाई कर रहा है। इफ वी सी वन टाइगर, एलिफेंट, व्हाट एवर, दे वॉक बाय देयर लेग्स। ऐसे ही हम देखें तो फॉर देयर मूवमेंट दे यूज देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो we can group animals based on their movements. Many animals differ from each other in their, और हमने जब नेचर वॉक कर रहे थे हमने देखे कि जो एनिमल्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। हमने देखा टाइगर इज वेरी बिग एंड इट इज येलो इन कलर। Similarly, little bit similar kind of we found the jungly cat, that is very small in size and it has gray color or black color. In this way we found that big elephants are there. Also the bear is very big. So some of the animals are very big and some of the animals are very small. The ant, some worms are there, they are also living. We should give respect to them also. So we found that some of the animals are big in shape, some of the animals are small in size, some are big in size, some structure are vigorous and some are very smaller structure, some has very beautiful, the snakes have very beautiful bright colors but they have poisons. In this way animals differ from each other in their shape, size, structure and color. जैसे हमने प्लांट के ग्रुप किए थे, लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों ग्रुपिंग ऑफ एनिमल क्यों इम्पोर्टेंट है ये बात हमको पता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट टाइप्स, वेराइटीज ऑफ. So how one animal is different from other, to understand that we need to put them on certain groups and it makes us easy for us अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. अरे हम इनका नाम जान लेते हैं. ये है जानकी अमल जी. इन्होंने, ये इंडियन एक बहुत फेमस बोटानिस्ट है. शी हेल्प्ड इन प्रिजर्विंग इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी. नहीं तो क्या हो रहा था, हमारे जो जंगल में पड़ा है बहुत सारे प्लांट वेराइटी विलुप्त हो जा रहा था. तो शी रियली हेल्प्ड in preserving India's rich plant biodiversity, and she also played key role in the Safe Silent Valley movement. ये जो Safe Silent Valley movements में इन्होंने की रोल प्ले किया था. और ये हमारी सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किए थे और प्लांट डाइवर्सिटी के लिए बहुत सारे काम किए थे. Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. In Kunti Puja river, they wanted to build one hydroelectric dam, but the people who were not residing there, they were not staying there, but they protested. Why? To preserve the untouched beauty of the moist green forest. It was a very nice moist green forest. They wanted to preserve it, so all the people living around it but not near to it, they protested. How they protested? They created the awareness programs, letter to editors and articles in newspaper and seminar, petition, then appeal in court, and also they published in newspaper all this, and however they succeeded and the dam, construction of the dam was stopped. Now come to plants and animals in different surroundings. डिफरेंट सराउंडिंग्स मीन्स सराउंडिंग किसे कहते हैं? जैसे हमारे हुआ एक डेजर्ट, वन टाइप ऑफ सैंड वेयर यू विल फाइंड हॉट वेदर एंड नो मॉइस्चर कंटेंट. देन फॉरेस्ट इज अनदर सराउंडिंग वेयर यू विल फाइंड very big trees with there will be no good paths there to walk within. In this way you will find a dense forest. That is another type of surrounding. If you will say the pond, sea, river, this is another type of surroundings where aquatic animals are found. So if we will, let's consider, does the animals movement is different, depends upon their surroundings. The movement of the animals, whether it depends upon the surroundings. Let's consider one goat
एंड वन फिश, एक गोट देखते हैं और एक फिश देखते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, फिश इट लिव्स इन वाटर, देन इट हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हाउ इट मूव्स बाय द हेल्प ऑफ फिन्स। इसका जो फिन्स होता है, इसका जो फिन्स होता है, इसी फिन्स की मदद से ये बहुत अच्छी तरह मूव करता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। So this you can see the ships which runs in sea, they are also in this shape, streamline shape. It means it is easy for the ship to navigate in the sea. So is the shape of the fish, so that you can move in water easily. It has also fins which helps it to change direction and move easily in water. If we consider goat, गोट कहाँ रहता है, इट लिव्स ऑन लैंड, लैंड में रहता है, क्या खाता है, ग्रास खाता है। तो फिर इट हैज, इसका मूवमेंट के लिए क्या है, लेग्स है, ये वॉक करता है, रन करता है। देन आपको क्या ऐसे देखें तो साइजेस एंड शेप ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट। इफ द सराउंडिंग चेंजेस देन द शेप एंड साइज ऑफ एनिमल्स ऑल्सो चेंजेस एज वी फाउंड इन द फिश एंड गोट। Then next come to the next page, activity 2.10। इसमें हमने देखा, आइए टेबल 2.6 देखते हैं। देखिए डिफरेंट सराउंडिंग्स जो बोलता था वही है डिफरेंट सराउंडिंग्स। डेजर्ट एक सराउंडिंग हुआ, माउंटेन एक हुआ, ओशन एक हुआ, फॉरेस्ट एक हुआ। तो डेजर्ट में हमको क्या मिलता है, हमको एनिमल्स में मिलता है कैमल और प्लांट्स में मिलता है कैक्टस। ऐसे माउंटेन्स में देखा है तो हमको डिओडो ट्री मिलता है, ओशन में फिश मिलता है और हमको फॉरेस्ट में लायन मिलता है। ऐसा हुआ है कि आपने डेजर्ट पे लायन देखा और ओशन पे कैमल देखा, नहीं ना। तो फिर डिफरेंट सराउंडिंग्स विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स that is found in one kind of region are different from those found in another kind of region। एक रीजन में जैसा पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे फॉरेस्ट में जो पाए जाएंगे वो ओशन में नहीं पाए जाएंगे, और जो डेजर्ट में पाए जाएंगे वो कहीं घना फॉरेस्ट में नहीं पाए जाएंगे। लेट्स कंसिडर वन डेजर्ट। तो अगर हम राजस्थान की डेजर्ट देखें, तो फिर इसमें क्या होगा, इफ यू कंसिडर प्लांट्स वी विल फाइंड दैट कैक्टस, plant cactus and animal camels, these are found in desert, hot desert area। Then if we consider the structure, then cactus has thick and fleshy stems। उनका stems जो है वो बहुत fleshy और thick होता है, क्यों, so that it can retain water, it can store water for longer time। और अगर हम हिमालय रीजन में चले जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश चले जाएं, हिमालय है तो फिर वहाँ पर हमको मिलेगा देवदार ट्री। देवदार ट्री कैसे होता है, इट इज कोनिकल इन शेप। अब हिमालयन रीजन जाएंगे, माउंटेनियस रीजन जाएंगे, व्हाट यू विल फाइंड स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल देयर। देन द प्लांट विल हैव टू गेट रीड ऑफ दिस स्नोफॉल, हाउ इट विल कोप अप विथ स्नोफॉल। देन इट हैज द शेप ऑफ द प्लांट इज कोनिकल, द ब्रांचेस आर फ्लेक्सिबल and sloping branches so that it can let the snow slide off, स्नो जैसे निकल के चले जाए। तो फिर ऐसे डिफरेंस आपको पाया जाएगा डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। एक रीजन की बायोडाइवर्सिटी दूसरे रीजन के तुलना में अलग क्यों होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड टू ए पर्टिकुलर एरिया कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। तो फिर एक रीजन में जो प्लांट एनिमल मिलते हैं दूसरे रीजन से वो अलग है। कैसे, देखो अगर हम एक हॉट डेजर्ट देखें तो फिर वहाँ पर क्या होता है, लिटिल वाटर अवेलेबल, पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, और दिन में हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होता है। तो फिर वहाँ पर जो भी एनिमल और प्लांट्स पाए जाएंगे उनको उसी हिसाब से टॉलरेट करना पड़ेगा, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडी। तो फिर जो प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे हमारे कैक्टस, उसका फ्लैशी स्टेम्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि दे कैन स्टोर वाटर एंड दे कैन टॉलरेट द कंडीशन ऑफ ड्राइनेस। अगर माउंटेनियस रीजन देखा जाए तो फिर व्हाट यू विल फाइंड, यू विल एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल देयर, सो द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड अप इजीली। फिर इसके लिए ट्री का हमारा कौन से बदलाव होते हैं, जैसे ट्री का शेप होगा कोनिकल शेप, और उनका ब्रांचेस जो है फ्लेक्सिबल होगा, जैसे हमारे देवदार ट्री हो गया। तो फिर ये स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री एनेबल देम टू स्लाइड ऑफ
all the snow easily. Okay, then let's compare a hot desert animal and one cold desert animal. देखो हमारे कैमल जो है हॉट डेजर्ट में भी पाए जाते हैं और कोल्ड डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, बट यू कैन फाइंड डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर. ओके, हाउ? इफ विल सी वन हॉट डेजर्ट कैमल, देन वी कैन फाइंड दैट देयर legs जो है दे आर वेरी लॉन्ग, देयर legs आर वेरी लॉन्ग एंड देयर वाइड हूफ्स, उनका पैर जो है वो बहुत लंबा लंबा होता है और उनका हूफ्स जो है, उनके खुरे जो है वो वाइड होते हैं. क्यों? सो दैट इट हेल्प्स देम टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड. जैसे बालू में अच्छी तरह चल पाएगा, इसी में वो हेल्प करता है. पर अगर कोल्ड डेजर्ट देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल पाए जाते हैं उनका जो लेग्स है वो शॉर्टर होता है और वो उनको मदद करता है माउंटेनियस रीजन में वॉक करने के लिए. ऐसे देखा जाए तो देखो, इन हॉट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली. हॉट डेजर्ट में हो या फिर कोल्ड डेजर्ट में हो, फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता है. तो फिर इसके लिए उनको फूड स्टोर करना पड़ता है. तो फिर क्या वो फूड बैग लेकर घूमते फिरे? नहीं. क्या होता है? उनका हम्स होता है, कैमल का हम्स होता है. हॉट डेजर्ट के जो कैमल है उनका वन हम्प होता है एंड कोल्ड डेजर्ट एनिमल दे हैव टू हम्स. तो फिर इसमें जब लेट विंटर आ जाता है, यानी कि विंटर जब खत्म होने को होता है, उनका हॉर्म्स में भी और कुछ खाना नहीं रहता और उनका हॉर्म्स भी श्रिंक कर जाता है. तो फिर हॉट डेजर्ट में जो कैमल का वन ही हम्प होता है और कोल्ड डेजर्ट में टू हम्स होता है और हम्स का काम है फूड स्टोर करना. तो फिर कोल्ड डेजर्ट में और क्या होता है? उनका लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, हेड से नेक लेकर उनका हेयर आप देख पा रहे हैं, वो लॉन्ग लॉन्ग हेयर होता है. आपका स्वेटर में कैसे होता है? छोटे छोटा बाल जैसे होता है ना, तो फिर आप आराम से ठंडी से मुकाबला कर पाते हो, ऐसे ही होता है. तो फिर ये लद्दाख रीजन में, लद्दाख हमारे कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर जो कैमल पाए जाएंगे ऐसे ही होंगे. अब हम और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपके पानी हमके शरीर से पसीना आता है तब छूटता है. तो फिर हॉट डेजर्ट में क्या होता है? जो पसीना बिल्कुल आता ही नहीं, नो स्वेटिंग, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन, उनका जो यूरिनेशन होता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होता है और उनका डंग जो है ड्राई होता है. तो फिर there is less chances of water loss. In this way they can tolerate the dry condition in the desert. और वो बहुत देर तक विदाउट ड्रिंकिंग वाटर भी रह पाते हैं. ठीक है, we are continuing class 6 science curiosity chapter 2. We will discuss about rhododendron, what is adaptation, what is habitat, terrestrial, aquatic and amphibians, and about secret groups. Okay, now let's come to what is rhododendrons. Rhododendrons is one type of bright beautiful flowers and it is found in the Sola forest of नीलगिरी. नीलगिरी की सोला फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये रोडोडेंड्रन जो है उसका शॉर्टर हाइट्स होता है और इसका लीव्स जो है दोज आर वेरी स्मॉल्स. व्हाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन माउंटेन टॉप. It is found on mountain top. Mountain top में क्या होगा? There will be heavy winds. Then how it can withstand in heavy winds? That's why it has smaller leaves. This is the special feature why it can survive on mountain top. But the same rhododendron again it is found in Sikkim. But there you can find it is little bit taller. It's no such short as it is in Sola forest of Nilgiri. So look. The same rhododendron, but it is of different types. Its height differs in Sikkim and in Nilgiri mountain. Now come to Andaman and Nicobar. Andaman Nicobar, why you want to go there? Because you can find different type of plants and animals there. What different type of? Andaman Nicobar, it is surrounded by sea. Then you can find huge whales and also colorful fish. When you will go for scuba diving, अगर आप जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए तो आपको समुंदर के नीचे इतना सुंदर सुंदर फिश मिलेंगे कि आपको लगेगा जैसे कि कोई फ्लावरिंग प्लांट्स है. तो फिर ये फिश जो है उसका बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. कैसे होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी. और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस शेप, इट इज़ वेरी इजी फॉर फिश टू swim in water.
तो फिर द स्ट्रीमलाइन बॉडी इज द स्पेशल फीचर एंड द कलरफुल फिश दोज आर द एडेप्टेशन फॉर द फिश फाउंड इन अंडमान निकोबार एरिया। तो ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक्स देम फिट टू सर्वाइव इन दैट एरिया। तो इसे कहते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या है? द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि हमारी कैमल में होता है हम्स, जिसकी वजह से वो स्केर्सिटी ऑफ फूड जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उससे वो मुकाबला कर सकता है। और जैसे हमारी डेजर्ट में यू कैन फाइंड द प्लांट्स विथ थिक स्टेम, तो फिर ये थिक स्टेम की वजह से इट कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर डेज एंड इट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। ऐसे कैमल भी ज़्यादा दिन तक अपनी खाना को स्टोर करके अपने हम्स में डेजर्ट में रह पाता है। तो फिर दिस स्पेशल फीचर्स मेक्स इट एनेबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ऐसे देखा जाए तो हमारी शेप ऑफ ड्यूडर ट्री हुआ या फिर हाइट ऑफ रोडोडेंड्रन हुआ, ये सब जो है इट एनेबल देम टू सर्वाइव इन दैट माउंटेनियस रीजन्स। तो फिर आइए देखते हैं हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मतलब सिंपली हम बोलें तो रहने का घर। तो फिर जैसे द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं तो फिर वहाँ उसको इसका हैबिटेट कहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? देखो जैसे कि वी मैन कैन सर्वाइव ऑन अर्थ, वी कैनॉट सर्वाइव ऑन मार्स और वी कैनॉट सर्वाइव ऑन वीनस। क्यों? हम अर्थ में ही क्यों रह पाएंगे? बिकॉज ऑफ राइट टेम्परेचर, right coldness and hotness, and also because of availability of air and so many things are there, also the sunlight we can stay here, but तो हमारा habitat हो गया अर्थ। ऐसे ही sea turtle is found in sea। सी टर्टल का हैबिटेट कहाँ है? सी है। ऐसे कैमल इज फाउंड इन हॉट, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या फिर कोल्ड डेजर्ट हो, कैमल इज फाउंड इन हॉट और कोल्ड डेजर्ट, तो कैमल का हैबिटेट हो गया हमारे डेजर्ट। ऐसे ही हमारे रोडोडेंड्रन जो है ये पाया जाता है माउंटेनियस एरिया में। तो फिर हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? हम कौन सी जगह हम अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमको अपनी पसंद का फूड, वाटर, एयर, शेल्टर ये सब अवेलेबल हो। तो द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड देयर अदर टाइप ऑफ नीड्स which is required for their survival। जहाँ पर अच्छी तरह रह पाते हैं, अपना हिसाब का मिलता है, वहाँ पर उनका हैबिटेट होता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये हैबिटेट जो है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। जिस प्रकार का हैबिटेट होगा उसी प्रकार से उधर का एनिमल और प्लांट्स हो गए और उसी प्रकार से वहाँ का बायोडाइवर्सिटी होगा। क्लियर? नाउ लेट्स नो अबाउट सलीम अली। तो ये सलीम अली कौन है? इन्होंने डाइवर्सिटी इन बर्ड्स के बारे में बहुत सारी स्टडी किया था और उन्होंने एक लिस्ट बनाया था, एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हाउ दे मेक देयर रूट इन वन सीजन इन वन रीजन, दे आर फाउंड इन वन सीजन इन वन रीजन एंड देयर हैबिटेट। जैसे कि हमारे विंटर में हमारी बहुत सारी बर्ड्स साइबेरियन एरिया से आके हमारे भरतपुर में ठहर जाते हैं। भरतपुर कहाँ है? भरतपुर ये राजस्थान में है और यहाँ पर केओलादेओ नेशनल पार्क है। तो फिर इन्होंने सलीम अली जी ने हमारे बताया थे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हाउ दे कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड देम कंफर्टेबल इन ए पर्टिकुलर रीजन इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो फिर उन्हीं के हिसाब से हमारे जो केओलादेओ नेशनल पार्क इन भरतपुर को प्रिजर्व किया गया था, सेंचुरी बना गया था, और ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या ऑफ कर्नाटका इनके लिए ही प्रिजर्व करके रखा गया था कि ये सब बर्ड्स के लिए परफेक्ट जगह है और इनको बचा के रखो। और इन्होंने बर्ड के ऊपर 10 बुक्स लिखे थे। और जानते हैं कि ये जो बर्ड्स है ये इंडियन सबकंट्री हमारी इंडिया के ही बर्ड्स के ऊपर लिखे थे और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनको 1976 में पद्म विभूषण का प्राइज भी मिला था। इसे देखा जाए तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये इनको हम किस तरह से ग्रुप करेंगे? कुछ तो लिव ऑन लैंड, कुछ लिव ऑन इन वाटर। तो फिर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फाउंड ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो कि लैंड में रहते हैं, उनको उसी प्लांट और एनिमल को कहा था कि ये लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। तो कौन कौन से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है? जैसे हमारे फॉरेस्ट हुआ, डेजर्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, माउंटेन हुआ, ये सब हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे हमारे एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में पाए जाते हैं, कहा जाता है कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। तो फिर हमारे एक्वेटिक हैबिटेट कौन कौन सा हुआ? जैसे हमारे पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ओशन, यहाँ पर पानी पाया जाता है, इसको कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। तो पर कुछ एनिमल्स हैं जो कि जैसे हमारी फ्रॉग हो गया, ये हमको पाया जाता है वाटर में भी और लैंड में भी, तो फिर इसे कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फी मीन्स टू, बोथ, यानी कि वाटर में भी और पानी में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है और लैंड में भी पाया जाता है, उसे कहते हैं एम्फीबियंस। अच्छा, एक बात बताओ कि व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज डैमेज। अगर ए प्लांट या फिर एनिमल का हैबिटेट अगर डैमेज कर दिया जाए, आप सोचो आपके घर डिस्ट्रॉय किया जाए तो क्या होगा? आप और वहां रहेंगे? उसी जगह छोड़कर चले जाएंगे, है ना? आपकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर हमारी गोट को अगर ग्रास ना दिया जाए या फिर हमारे पानी से अगर फिश को निकाल दिया जाए, इफ वी विल टेक आउट फिश फ्रॉम वाटर, देन व्हाट वुड हैपन? अल्टीमेटली इट विल डाई एंड अल्टीमेटली द पॉपुलेशन ऑफ फिश विल डिक्लाइन ग्रेजुअली। तो फिर ऐसे ही अगर आप आपके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करें और नेबर को साथ बात करें, तो फिर वो लोग को आप कहते हुए कभी सुने होंगे कि देयर चाइल्डहुड में जो सारी प्लांट्स एनिमल दिखते थे, आजकल तो वो नहीं दिखते, है ना? तो फिर क्यों नहीं दिखते? बिकॉज डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। अगर हम किसी के घर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर उसके हिसाब से उसका खाना वाना वो सब हैबिटेट नहीं देते, तो फिर ऑब्वियसली उसका पॉपुलेशन जो है डिक्रीज करेगा। उसी से क्या होगा? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी में हमारे फर्क आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं पेज नंबर 20 की ये येलो बॉक्स में। हमारी पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जब बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जैसी जगह रहना पसंद करते हैं, उसी नेचुरल हैबिटेट का डिस्टर्बेंस हुआ, लॉस हुआ, तो फिर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे रोड रास्ता हो गया, मकान बनाना हो गया, तो इसके वजह से वो लोग डिस्टर्ब हो गए और उनका नंबर जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो उनको बचाने के लिए हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर किया 1973 में। क्यों किया? क्योंकि ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, बंगाल टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हमारी 2022 में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी किया गया, दूसरे बाहर की कंट्री से चीता को इंडिया लाया गया। और फिर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के लिए, उनका रहने की सुविधा के लिए, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो, इसीलिए हमारी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों जगह में एरिया को प्रोटेक्टेड करके रखा गया ताकि इनका सही तरह देखभाल हो सके। आइए अब देखते हैं कि हमारी ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? ये ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। सेक्रेड ग्रुप अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है, यानी कि वही एक फॉरेस्ट का एक एरिया को डिस्टर्ब ना किया जाए, फॉरेस्ट को ना डिस्टर्ब किया जाए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नॉट टू डिस्टर्ब एनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। इट मीन्स no plants will be allowed to cut and no animals will be allowed to be killed. एंड इसके साथ साथ वहाँ पर पाए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। हाउ दे आर प्रोटेक्टेड? दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड ट्रीज और एनी मेडिसिनल प्लांट फाउंड देयर। और उसी के कहते हैं हमारे सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this, we complete our chapter. Thank you.